السلام علیکم میرے ساتھیوں اور دوستوں، آج ہم اسٹارٹ کریں گے پارٹ نمبر 18۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ داستان ایمان فروشوں کی با التمش میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور شیئر کریں۔ تو ساتھیوں پھر اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی پارٹ نمبر 18 کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العاضد نے مرنے سے پہلے اپنے محافظ دستے کے سالار رجب کے متعلق بتایا تھا کہ وہ سوڈان میں روپوش ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے اور وہ صلیبیوں سے بھی مدد لے گا۔ علی بن سفیان نے 6 ایسے جانباز منتخب کیے جو لڑاکا جاسوس تھے۔ ان کا کماندار رجب کو پہچانتا تھا۔ انہیں تاجروں کے بھیس میں سوڈان روانہ کر دیا گیا۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ممکن ہو سکے تو اسے زندہ پکڑ لائیں، ورنہ وہیں قتل کر دیں۔ جس وقت یہ پارٹی سوڈان کو روانہ ہوئی، اس وقت رجب سوڈان میں نہیں بلکہ فلسطین کے ایک مشہور اور مضبوط قلعے شوبک میں تھا۔ فلسطین پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے اس خطے کو اڈہ بنا لیا تھا۔ مسلمانوں پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان وہاں سے کنبہ در کنبہ بھاگ رہے تھے۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبی ڈاکوؤں کی صورت بھی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ کر فلسطین میں آ جاتے تھے، لڑکیوں کو بھی اغوا کر لاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی سب سے پہلے فلسطین کو تحقیق کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ قبلہ اول پر بھی صلیبی قابض تھے، مگر مسلمان امراء کا یہ عالم تھا کہ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے تھے۔ رجب بھی ایک مسلمان فوجی سربراہ تھا۔ وہ سلطان کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کے اعزاز میں قلعے میں رقص کی محفل گرم کی گئی تھی۔ رجب نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ برہنہ ناچ ناچنے والیوں میں زیادہ تعداد مسلمان لڑکیوں کی تھی، جنہیں صلیبیوں نے کم سنی میں اغوا کر لیا اور رقص کی تربیت دی تھی۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو وہ کافروں کے قبضے میں ناشتہ دیکھتا رہا اور ان کے ہاتھوں شراب پیتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 مسلمان کماندار بھی تھے۔ رات بھر وہ شراب اور رقص میں بدمست رہے اور صبح صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھے۔ اس اجلاس میں صلیبیوں کے مشہور بادشاہ گائی لوزینان اور کونارڈ موجود تھے۔ ان کے علاوہ چند ایک صلیبی فوج کے کمانڈر بھی تھے۔ رات کو رجب انہیں بتا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کے حبشی قبیلے کے موبد کو مسمار کر کے ان کے پیشوا کو ہلاک کروا دیا ہے۔ اس پر سوڈانیوں نے حملہ کیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے پسپا کیا اور اس نے خلیفہ العاضد کی خلافت ختم کر کے خلافت عباسیہ کا اعلان کر دیا ہے، مگر مصر میں کوئی خلیفہ نہیں رہے گا۔ رجب نے انہیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایوبی مصر کا خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے۔ رجب نے صلیبیوں کو اس اجلاس میں بتایا کہ وہ ان سے جنگی اور مالی مدد لینے آیا ہے اور وہ سوڈان جا کر فوج تیار کر لے گا۔ مصر میں بدنظمی اور ابتری پھیلانے کے لیے بھی اس نے صلیبیوں سے مدد مانگی۔ فوری طور پر 2 پہلو سامنے آتے ہیں جن پر ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے، کونارڈ نے کہا۔ جس حبشی قبیلے کے مذہب میں صلاح الدین ایوبی نے ظالمانہ دخل اندازی کی ہے، اسے انتقام کے لیے بھڑکایا جائے۔ اس کے ساتھ سارے سوڈان میں جتنے بھی عقیدے اور مذہب ہیں، ان کے پیروکاروں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف یہ کہہ کر مسلح کیا جائے کہ یہ مسلمان بادشاہ لوگوں کی عبادت گاہیں اور ان کے دیوتاؤں کے بت توڑتا پھر رہا ہے۔ پیشتر اس کے کہ وہ کسی اور عقیدے پر حملہ آور ہو، اسے مصر میں ہی ختم کر دیا جائے۔ اس طرح لوگوں کے مذہبی جذبات مشتعل کر کے انہیں مصر پر حملے کے لیے آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم مصر کے مسلمانوں تک کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، اگر محترم رجب برا نہ مانے تو میں انہی کے فائدے کی بات کہہ دوں۔ مسلمان میں مذہبی جنون پیدا کر کے مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں مروا دینا کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح ہمارے مذہب میں بعض پادریوں نے اپنے آپ کو گرجوں کا حاکم بنا کر اپنا وجود انسان اور خدا کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، بالکل اسی طرح اسلام میں بھی بعض اماموں نے مسجدوں پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو خدا کا ایجنٹ بنا لیا ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے جس کے زور پر ہم مسلمان مولوی تیار کر کے مصر کی مسجدوں میں بٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے عیسائی بھی موجود ہیں جو اسلام اور قرآن سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ انہیں ہم مسلمان اماموں کے روپ میں استعمال کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف کسی مسجد میں کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان مولویوں کی زبان سے ہم مسلمانوں میں ایسی قوم پرستی پیدا کریں گے کہ ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی وہ عظمت مٹ جائے گی جو اس سے پیدا کر رکھی ہے۔
یہ مہم فوراً شروع کر دینی چاہیے۔ رجب نے کہا سلطان ایوبی نے مصر میں مدرسے کھول دیے ہیں جہاں بچوں اور نوجوانوں کو مذہب کے صحیح رخ کی روشناس کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہاں کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا، لوگ مسجدوں میں خطبے سنتے تھے جن میں خلیفہ کی مدح سرائی زیادہ ہوتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے خطبوں سے خلیفہ کا ذکر ختم کرا دیا ہے۔ اگر لوگوں میں علم کی روشنی اور ذہنی بیداری پیدا ہو گئی تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے استحکام کے لیے لوگوں کی ذہنی طور پر پسماندہ اور جسمانی طور پر محتاج رکھنا لازمی ہے۔ محترم رجب، ایک صلیبی کمانڈر مسکرا کر بولا، آپ کو اپنے ملک کے متعلق بھی علم نہیں کہ وہاں درپردہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مہم اسی روز شروع کر دی تھی جس روز صلاح الدین ایوبی نے ہمیں بحیرہ روم میں شکست دی تھی۔ ہم کھلی تخریب کاری کے قائل نہیں، ہم ذہنوں میں تخریب کاری کیا کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں محترم، 2 سال پہلے قاہرہ میں کتنے قہوہ خانے تھے اور اب کتنے ہیں؟ کیا ان میں بے پناہ اضافہ نہیں ہو گیا؟ کیا دولت مند مسلمان گھرانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں میں قابل اعتراض معاشقے شروع نہیں ہو گئے؟ ہم نے وہاں جو عیسائی لڑکیاں بھیجی تھیں وہ مسلمان لڑکیوں کے روپ میں مسلمان مردوں کے درمیان رقابت پیدا کر کے خون خرابے کرا چکی ہیں۔ قاہرہ میں ہم نے نہایت دلکش جوا بازی رائج کر دی ہے۔ 2 مسجدوں میں ہمارے بھیجے ہوئے آدمی امام ہیں، وہ نہایت خوبی سے اسلام کی شکل و صورت بگاڑ رہے ہیں، وہ جہاد کے معنی بگاڑ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں عالموں اور فاضلوں کے بھیس میں بھی کچھ آدمی بھیج رکھے ہیں جو مسلمانوں کو جنگ و جدل کے خلاف تیار کر رہے ہیں، وہ دوست اور دشمن کا تصور بھی بدل رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ توقع ہے کہ مسلمان چند برسوں تک اس ذہنی کیفیت میں داخل ہو جائیں گے جہاں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہیں گے مگر ان کے ذہنوں پر ان کی تہذیب و تمدن پر صلیب کا اثر ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی کا نظام بہت ہوشیار ہے، رجب نے کہا۔ اگر اس کے شعبے جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کو قتل کر دیا جائے تو صلاح الدین ایوبی اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، کونارڈ نے کہا۔ آپ ایک حاکم کو قتل بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ عقل کے لحاظ سے اتنے کمزور ہیں تو آپ ہمارے آدمیوں کو بھی پکڑوا کر مروا دیں گے اور ہماری دولت بھی برباد کریں گے۔ یہ کام میں خود کرا لوں گا، رجب نے کہا۔ میں نے فدائیوں سے بات کر لی ہے، وہ تو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے مصر کی سرحد پر بدامنی پیدا کرتے رہیں، کونارڈ نے کہا۔ ملک کے اندر ہم ذہنی اور دیگر اقسام کی تخریب کاری کرتے رہیں گے۔ ادھر عرب میں کئی ایک مسلمان امراء ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ ان سے ہم جزیہ وصول کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے حملے کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے پہی چال چلیں، مسلمانوں میں صرف 2 شخص رہ گئے ہیں، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی۔ ان کے ختم ہوتے ہی اسلامی دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مصر آپ کا ہوگا۔ اس قسم کی بنیادی گفت شنید کے بعد بہت دیر تک ان میں طریقہ کار اور لاہ عمل پر بحث ہوتی رہی۔ آخر کار رجب کو 3 بڑی ہی دلکش اور بے حد چالاک لڑکیاں اور سونے کے 1000 سکے دیے گئے۔ اسے قاہرہ کے 2 آدمیوں کے پتے دیے گئے، ان میں سے کسی ایک تک ان لڑکیوں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک سلطان ایوبی کے جنگی شعبے کا یا ایک حاکم فیض الفاطمی تھا۔ رجب کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اسے اتنی ہی بتایا گیا تھا کہ فیض الفاطمی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ لڑکیوں کا استعمال جانتا ہے، وہ لڑکیوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تینوں عرب اور مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھی۔ اسی روز 3 لڑکیاں اور 10 محافظ رجب کے ساتھ کر کے اسے روانہ کر دیا گیا۔ اسے سب سے پہلے سوڈان کے اسی پہاڑی خطے میں جانا تھا جہاں لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اور جہاں سلطان ایوبی کے جانبازوں نے عرارہ کو حبشیوں سے چھڑا کر پیشوا کو ہلاک کیا اور فرعونوں کے وقتوں کی عمارتیں تباہ کی تھیں۔ رجب نے سوڈانیوں کی شکست اور الازد کی خلافت سے معزولی کے بعد بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی اور اسی جگہ کو اپنا اڈہ بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے گرد حبشیوں کا وہ قبیلہ جمع کر لیا تھا جس کے پیشوا کو سلطان ایوبی نے ہلاک کرایا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو دیوتاؤں کا مسکن کہتے تھے اور پہاڑیوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اندر صرف 4 بوڑھے حبشی جاتے تھے، ان میں سے ایک ایسے قبیلے کا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مرے ہوئے پیشوا کا جانشین بنا لیا تھا۔ اس نے 3 آدمی اپنے محافظوں کے طور پر منتخب کر لیے تھے
जो इसके साथ पहाड़ियों के अंदर जाते थे। रजब ने इसी छोटे से खित्ते के एक और ढके छुपे गोशे को अपना घर बना लिया था। फ़रार होकर वो वहाँ गया और फिर मिस्र में मुकीम किसी सलीबी एजेंट के साथ फ़लस्तीन चला गया था। हबशियों का ये कबीला जो अंगूक कहलाता था, खौफज़दा था। एक तो उनके देवता की कुर्बानी पूरी ना हुई, दूसरे उन पर पेशवा मारा गया, तीसरे इनके देवता का बुत और मस्कन ही तबाह कर दिया गया, और चौथी मुसीबत ये नाजिल हुई कि कबीले के सैकड़ों जवान देवता की तौहीन का इंतकाम लेने गए तो इन्हें शिकस्त हुई और ज़्यादातर मारे गए। इस कबीले के घर घर में मातम हो रहा था। इनमें से बाज़ लोग ये भी सोचने लगे थे कि जिसने इनके देवता का बुत तोड़ा है वो कोई बहुत बड़ा देवता होगा। मरे हुए पेशवा के जानशी ने जब अपने कबीले का ये हाल देखा तो इसने पहले तो ये कहा कि देवता के मगरमच्छ भूखे हैं, उनके पेट भरो। हबशियों ने कई एक बकरियां मगरमच्छों के लिए भेज दी। एक ने तो ऊँट पुरोहित के हवाले कर दिया। ये जानवर कई दिनों तक मगरमच्छों की झील में फेंके जाते रहे मगर कबीले से खौफ कम ना हुआ। एक रात नए पेशवा ने कबीले को पहाड़ी जगह से बाहर जमा किया और बताया कि इसने देवताओं तक रसाई हासिल की है। देवताओं ने ये इशारा दिया है कि चूँकि वक्त पर लड़की की कुर्बानी नहीं हुई इसलिए कबीले पर यह मुसीबत नाजिल हुई है। देवताओं ने कहा है कि अब बैक वक्त 2 लड़कियों की कुर्बानी दी जाए तो मुसीबत टल सकती है, वरना देवता सारे कबीले को चैन नहीं लेने देंगे। पेशवा ने यह भी कहा कि लड़कियां अंगूग ना हो और सूडान की भी ना हो, उनका सफ़ेद फार्म होना ज़रूरी है। इतना सुनना था कि कबीले के बहुत से दिलेर और निडर आदमी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि वो मिस्र से 2 फ़रंगी या मुसलमान लड़कियां उठा लाएंगे। उधर से रजब फ़लस्तीन से 3 सलीबी लड़कियां 10 मुहाफ़िज़ों के साथ ला रहा था। इसका सफ़र बहुत लंबा था और ये सफ़र ख़तरनाक भी था। वो सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज का भगोड़ा और बागी सालार था। इसे मालूम था कि सरहद के साथ साथ सुल्तान अय्यूबी ने गश्ती पहरे का इंतज़ाम कर रखा है, इसलिए वो अपने काफ़िले को दूर का चक्कर काट कर ला रहा था। उसके काफ़िले में 3 ऊँट थे जिन पर पानी, खुराक और सलीबियों का दिया हुआ बहुत सारा सामान लदा हुआ था। बाकी सब घोड़ों पर सवार थे। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो देवताओं के पहाड़ी मस्कन में पहुंच गए। इससे एक ही रोज़ पहले कबीले के पेशवा ने कहा था कि 2 सफ़ेद फार्म और सूडान के बाहर की लड़कियों की कुर्बानी देनी है। रजब सबसे पहले पेशवा से मिला। पेशवा ने इसके साथ 3 सफ़ेद फार्म और बहुत ही हसीन लड़कियां देखीं तो इसकी आंखें चमक उठीं। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजूद थीं। इसने रजब से लड़कियों के मुताल्लिक़ पूछा तो रजब ने इसे बताया कि इन्हें वो ख़ास मकसद के लिए अपने साथ लाया है। रजब लड़कियों को पहाड़ियों के अंदर एक ऐसी जगह ले गया जो सरसब्ज़ और खुशनुमा थी और 3 एतराफ़ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। वहाँ रजब ने खैमे गाड़ दिए थे। लड़कियों को चोरी छुपे मौका महल देखकर काहिरा में उन 2 आदमियों के हवाले करना था जिनके अते पते से सलीबियों ने दिए थे। लड़कियों के आराम और आसाइश का पूरा इंतज़ाम था। रजब ने वहाँ शराब का भी इंतज़ाम कर रखा था। रात इसने सफ़र से कामयाब लौटने की खुशी में जश्न मनाया। सलीबी मुहाफ़िज़ों को भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी पी। आधी रात के बाद जब मुहाफ़िज़ और इसके अपने चंद एक साथी जो पहले ही वहाँ मौजूद थे सो गए तो रजब एक लड़की को बाजू से पकड़कर अपने खैमे में ले जाने लगा। लड़की इसकी नीयत भांप गई। इसने इसे कहा, मैं तवाइफ़ नहीं हूँ, मैं यहाँ सलीब का फ़र्ज़ पूरा करने आई हूँ। मैं आपके साथ शराब पी सकती हूँ मगर बदी कबूल नहीं करूँगी। रजब ने इसे हंसते हुए अपने खैमे की तरफ घसीटा तो लड़की ने अपना बाजू छुड़ा लिया। रजब ने 10 दराजी की तो लड़की दौड़कर अपनी साथी लड़कियों के पास चली गई थी। वो दोनों भी बाहर आ गईं। इन्होंने रजब को समझाने की कोशिश की कि वो इन्हें गलत ना समझे। रजब को गुस्सा आ गया। इसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी पाकबाज हो, बेहयाई तुम्हारा पेशा है। इस पेशे का इस्तेमाल हम वहाँ करती हैं जहाँ अपने फ़र्ज़ के लिए ज़रूरी होता है। लड़की ने कहा, हम अय्याशी की खातिर अय्याशी नहीं किया करती। रजब इनकी कोई बात समझना नहीं चाहता था। आखिर लड़कियों ने इसे कहा, हमारे साथ 10 मुहाफ़िज़ हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए साथ आए हैं। इन्हें कल वापस चले जाना है। अगर हमने इनकी ज़रूरत महसूस की तो हम इन्हें यहाँ रोक सकती हैं या ख़ुद यहाँ से जा सकती है। रजब चुप हो गया मगर इसके तेवर बता रहे थे कि वो लड़कियों को बख्शेगा नहीं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन रजब ने फ़लस्तीन से 7 लाए हुए मुहाफ़िज़ों को रुखसत कर दिया। दिन गुजर गया। शाम के वक्त रजब लड़कियों के साथ बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था कि पेशवा अपने 4 हबशियों के साथ आ गया। इसने सूडानी ज़बान में रजब से कहा, हमारे देवता हमसे नाराज़ हैं। इन्होंने 2 फ़रंगी या मुसलमान लड़कियों की कुर्बानी मांगी है। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजू हैं। इनमें से 2 लड़कियां हमारे हवाले कर दो। रजब चकरा गया। इसने जवाब दिया, ये लड़कियां कुर्बानी के लिए नहीं हैं। इनमें से हमें बहुत काम लेना है और इन्हीं के हाथों हमें तुम्हारी देवताओं के दुश्मन को
मरवाना है। तुम झूठ बोलते हो। पेशवा ने कहा, तुम इन लड़कियों को यहाँ तफरीह के लिए ले आए हो, हम इनमें से 2 लड़कियों को कुर्बान करेंगे। रजब ने बहुत दलीलें दी मगर पेशवा ने किसी एक भी दलील को कबूल नहीं किया। इसके दिमाग पर देवता सवार थे। इसने उठकर 2 लड़कियों के सरों पर बारी बारी हाथ रखे और कहा, ये दोनों देवता के लिए हैं, अंगूक की निजात इन 2 लड़कियों के हाथ में है। ये कहकर वो चला गया। रुक कर रजब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश ना करना, तुम जानते हो कि हम तुम्हें फ़ौरन ढूंढ लेंगे। लड़कियां सूडान की ज़बान नहीं समझती थी। हबशी पेशवा ने इनके सरों पर हाथ रखा। रजब को परेशान देखा तो इन्होंने रजब से पूछा, ये हबशी क्या कह रहा था। रजब ने इन्हें साफ साफ बता दिया कि वो इन्हें कुर्बानी के लिए मांगता है। लड़कियों के पूछने पर उसने बताया कि वो तुम्हारे सर काटकर खुश्क होने के लिए रख देंगे और जिस्म झील में फेंक देंगे, जहां मगरमच्छ जिस्मों को खा जाएंगे। लड़कियों के रंग फ़क हो गए। उन्होंने रजब से पूछा कि इसने इन्हें बचाने के लिए क्या सोचा है। रजब ने जवाब दिया, मैंने इसे समझाने के लिए सारी दलीलें दे डाली हैं मगर उसने एक भी नहीं सुनी। मैं इन लोगों के रहमो करम पर हूँ, मैं तो इन्हें अपने साथ मिलाना चाहता हूँ। ये मेरी फ़ौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अक़ीदे के इतने पक्के हैं कि पहले देवताओं को खुश करेंगे फिर मेरी बात सुनेंगे। रजब की बातों और अंदाज से लड़कियों को शक हो गया कि वो इन्हें बचा नहीं सकेगा या इन्हें खुश करने के लिए बचाने की कोशिश नहीं करेगा। इन्होंने गुज़िश्ता रात रजब की नीयत की एक झलक देख भी ली थी। इससे वो उससे मायूस हो गई थी। रजब ने इन्हें रस्मी तौर पर भी तसल्ली न दी कि वो इन्हें बचा लेगा। लड़कियां खैमे में चली गईं। उन्होंने सूरत हाल पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि वो यहाँ रजब की अय्याशी का ज़रिया बनने, हबशियों के देवता की भेंट चढ़ने के लिए नहीं आई। वो बेमकसद मौत नहीं मरना चाहती थी। इन्होंने वहाँ से फ़रारी का इरादा किया। फ़रार होकर फ़लस्तीन तक खैरियत से पहुँचना आसान काम ना था मगर कोई चारा कार भी ना था। ये लड़कियां सिर्फ खूबसूरत और दिलकश ही नहीं थीं, घुड़सवारी और सिपाहीगिरी की भी इन्हें तरबियत दी गई थी ताकि ज़रूरत पड़े तो अपना बचाव खुद कर सकें। इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो यहाँ से भागकर फ़लस्तीन चली जाएंगी। वो रात खैरियत से गुजर गई। दूसरे दिन लड़कियों ने अच्छी तरह देखा कि रात को घोड़े कहाँ बंधे होते हैं और वहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है। हबशी पेशवा दिन के वक्त भी आया और रजब के साथ बातें करके चला गया। लड़कियों ने इससे पूछा कि वो क्या कह गया है। रजब ने इन्हें बताया कि वो कल रात तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो मुझे धमकी दे गया है कि मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मुझे कत्ल करके मगरमच्छों को झील में फेंक देगा। लड़कियों ने इसे ये नहीं बताया कि वो फ़रार का फ़ैसला कर चुकी हैं क्योंकि इन्हें रजब की नीयत पर शक हो गया था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन लड़कियां थीं। उन्होंने रजब के साथ ऐसी बातें कीं और ऐसी बातें इसके मुंह से कहलवाईं जिनसे पता चलता था जैसे वो इन्हें बचाने की बजाय हबशियों को खुश करना चाहता है ताकि वो उसे वहीं छुपाए रखें और इसे सुल्तान अय्यूबी के ख़िलाफ़ फ़ौज तैयार करने में मदद दें। लड़कियों को ये शक भी हुआ कि रजब इन्हें ऐसी कीमत के एवज़ बचाने की कोशिश करेगा जो वो उसे नहीं देना चाहती थी। सारा दिन इसी शशोपंज में गुजर गया। रजब को शक न हुआ कि लड़कियां भाग जाएंगी। उसे उस वक्त भी शक न हुआ जब लड़कियों ने इससे कहा कि ऐसे जहन्नुम नुमा सहरा में ऐसा सरसब्ज़ खित्ता कुदरत का अजूबा है, आओ ज़रा इसकी सैर करा दो। रजब इन्हें घुमाने फिराने लगा। आगे वो भयानक झील आ गई जिसके किनारे पर 5-6 मगरमच्छ बैठे थे। झील का पानी गलीज़ और बदबूदार था। इस लड़की ने कहा कि यूँ मालूम होता है जैसे पहाड़ी के अंदर चश्मा है। सब ने जब पहाड़ी के अंदर देखा तो एक लड़की की चीख निकल गई। पानी पहाड़ी के अंदर एक वसी गार बना कर चला गया था। रजब ने कहा, ये हैं वो मगरमच्छ जो यहाँ के मुजरिमों को और कुर्बान की हुई लड़कियों के जिस्मों को खाते हैं। ऐसा होलनाक मंजर देखकर लड़कियों के दिलों में फ़रारी का इरादा और ज़्यादा पुख्ता हो गया। उन्होंने सैर के बहाने फ़रार का रास्ता अच्छी तरह देख लिया और ऐसी नरम ज़मीन देख ली जिस पर घोड़ों के कदमों की आवाज़ पैदा ना हो। इनकी सैर की ख्वाहिश के पीछे यही मकसद था। उधर हबशी पेशवा करीबी बस्ती में बैठा कबीले को ये खुशखबरी सुना रहा था कि कुर्बानी के लिए लड़कियां मिल गई हैं और कुर्बानी आज से चौथी रात दी जाएगी जो पूरे चांद की रात होगी। इसने कहा कि कुर्बानी देवताओं के मस्कन और माबिद के खंडरों पर दी जाएगी। इसके बाद हम ये माबिद ख़ुद तामीर करेंगे और जब ये माबिद तामीर हो जाएगा तो हम उस कौम से इंतकाम लेंगे जिन्होंने हमारे देवता की तौहीन की है। निस्फ शब का अमल था। रजब और इसके साथियों को लड़कियों ने अपने खुसूसी फ़न का मुजाहरा करते हुए इतनी शराब पिला दी थी कि इनकी बेदारी का ख़तरा ही ख़त्म हो गया था। वो बेहोश पड़े थे। लड़कियों ने सफ़र के लिए सामान बांध लिया। 3 घोड़ों पर ज़ैन कसी
सवार हुईं और इस नरम ज़मीन पर घोड़ों को डाल दिया जो इन्होंने दिन के वक्त देखी थी। इस खित्ते के एक हिस्से में 4 हबशी मौजूद थे, लेकिन वो सोए हुए थे और दूर थे। इन्हें मालूम था कि यहाँ से कोई भागने की जुर्रात नहीं कर सकता। अगर भागेगा तो सहरा उसे रास्ते में ही ख़त्म कर देगा। मगर लड़कियाँ इस सरसब्ज़, खुशनुमा और हौलनाक कैद खाने से निकल गईं। वो इसी रास्ते से फ़लस्तीन जाना चाहती थी जिस रास्ते से रजब इन्हें लाया था। वो थीं तो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और इन्हें अस्करी तरबियत भी दी गई थी, मगर इन्हें यह इल्म नहीं था कि सहरा में इस कदर फ़रेब छुपे हुए हैं जो दानिशमंदों को भी अक़ल का अंधा कर दिया करते हैं। इतने तवील सहराई सफ़र पर लोग काफ़िलों की सूरत में निकला करते थे और इनके पास सहरा की हर आफत का मुकाबला करने का एहतमाम होता था। रात के वक्त तो सहरा सर्द था। तीनों लड़कियों ने उस जगह से कुछ दूर तक घोड़ों को आहिस्ता आहिस्ता चलाया, फिर एड़ लगा दी। घोड़े सरपट दौड़ने लगे। बहुत दूर जाकर इन्होंने घोड़ों की रफ्तार कम कर दी। बाकी रात घोड़े इसी रफ्तार पर चलते रहे। सुबह तुलू हुई और जब सूरज ऊपर आया तो लड़कियों के इर्द गिर्द रेत के गोल गोल टीले थे और इनसे आगे रेतीली मिट्टी की ऊंची ऊंची पहाड़ियां खड़ी थीं। कोई रास्ता न था। इन्होंने सूरज से अपनी सिमत का अंदाज़ा किया और टीलों की भूल भुलैयों में दाखिल हो गईं। घोड़े प्यासे थे। हर घोड़े पर पानी का एक एक छोटा मशकीज़ा था जो एक दिन के लिए भी काफ़ी नहीं था। घोड़ों को कहाँ से पानी पिलाया जाता। लड़कियाँ किसी किसी नखलिस्तान की तलाश में चली गईं। सूरज ऊपर उठता गया और सहरा को दोज़ख बनाता गया। नखलिस्तान का कहीं निशान और तसव्वुर भी नज़र नहीं आता था। रजब और इसके साथी सूरज तुलू होने के बाद भी ना जागे तो वो बेहोशी की नींद सोए हुए थे। पेशवा अपने 3 हबशियों के साथ आया। इसने सबसे पहले लड़कियों के खेमे में देखा। खेमा खाली था। इसने रजब को जगाया और कहा, दोनों लड़कियां मेरे हवाले कर दो। रजब हड़बड़ा कर उठा और पेशवा को कायल करने की कोशिश करने लगा कि वो इन लड़कियों को ज़ाया ना करे। इसने उसे तफसील से बताया कि इन लड़कियों से क्या काम लेना है, मगर पेशवा ने इसकी एक भी बात ना मानी। रजब ने अपने साथियों को जगाना चाहा तो हबशियों ने उसे पकड़ लिया। पेशवा ने पूछा, लड़कियां कहाँ हैं? रजब ने वहीं से लड़कियों को पुकारा तो इससे कोई जवाब न मिला। खेमे में जाकर देखा, इन्हें इधर उधर देखा, वो कहीं नज़र ना आई। अचानक नज़र ज़ैनों पर पड़ी। 3 ज़ैनें गायब थीं। घोड़े देखे तो 3 घोड़े गायब थे। रजब ने पेशवा से कहा, वो तुम्हारे डर से भाग गई हैं। तुमने बड़े काम की लड़कियों को भगा दिया है। इन्हें तुमने भगाया है, पेशवा ने कहा और अपने 3 हबशियों से रजब के मुताल्लिक कहा, उसे ले जाकर बांध दो। इसने अंगूक के देवता को भी फिर नाराज़ कर दिया है। अच्छे सवारों को बुलाओ और लड़कियों को पीछा करो, वो दूर नहीं जा सकती। रजब के एहतजाज और मन्नत समाजत को नज़रअंदाज करते हुए हबशी इसे अपने साथ ले गए और एक दरख्त के साथ उसे इस तरह बांध दिया गया कि इसके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। इसके सोए हुए साथियों के हथियार उठा लिए गए। फिर इन्हें जगाकर धमकी दी गई कि वो यहाँ से हिले तो कत्ल हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद 6 घुड़सवार और शतर सवार आ गए। इन्हें लड़कियों के ताक़ुब में रवाना कर दिया गया। रेत पर 3 घोड़ों के कदमों के निशान साफ थे। इस सिमत को ये हबशी सवार इंतहाई रफ्तार से रवाना हो गए। लड़कियों को पकड़ना आसान नहीं था क्योंकि फ़रार और ताक़ुब में 8-10 घंटों का फ़र्क था। हबशी सवारों को ये सहूलत हासिल थी कि वो सहरा के भेदी थे और मर्द थे, सख्तियाँ झेल सकते थे। आगे जाकर इन्हें ये मुश्किल पेश आई कि हवा चल रही थी जिसने रेत उड़ाकर घोड़ों के खुरे गायब कर दिए थे। फिर भी वो अंदाज़े से ऊपर चलते गए। 3-4 घंटों के ताक़ुब के बाद इन्हें एक तरफ से आसमान पर उफ़ुक़ के कुछ ऊपर तक मटियाली सुर्खी दिखाई दी जो ऊपर उठती और आगे बढ़ती आ रही थी। सवारों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। घोड़ों और ऊँटों को पीछे की तरफ मोड़कर सरपट दौड़ाया। ये सहरा की वो आंधी आ रही थी जो बड़े बड़े टीलों को रेत के ज़र्रों में बदल कर उड़ा ले जाती है। कोई इंसान या जानवर कहीं रुक कर खड़ा रहे या बैठ जाए तो रेत इसके जिस्म के साथ रुक कर इसे ज़िंदा दफन कर देती थी और इस पर टीला खड़ा हो जाता था। वहाँ आंधी से बचने के लिए कोई मजबूत टीला नहीं था। वो भागकर अपने पहाड़ी खित्ते तक पहुँचना चाहते थे जो बहुत ही दूर था। वहाँ तक आंधी पहुँच गई थी। उस खित्ते के दरख्त दोहरे हो कर चीख रहे थे। झील के मगरमच्छ पहाड़ी के आबी गार में जा छुपे थे। पेशवा एक जगह ज़मीन पर घुटने टेके हुए हाथ हवा में बुलंद करता और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारता था। हर बार बुलंद आवाज़ से कहता था, अंगूक के देवता अपने कहर को समेट ले। हम 2 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां तेरे कदमों में पेश कर रहे हैं। वो इस आंधी को देवता का कहर समझ रहा था। सहरा और आंधी का चोली दामन का साथ था।
لیکن سرخ اور ایسی تیز و تند آندھی کبھی کبھی چلا کرتی تھی۔ لڑکیوں کو ابھی آندھی نے لپیٹ میں لے لیا تھا لڑکیوں کو بھی آندھی نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان کے لیے کوئی آڑ اور اوٹ نہیں تھی۔ وہ وحشیوں کے خطرے سے تو بہت دور نکل گئی تھیں، مگر صحرا کے ایسے خطرے میں آ گئیں جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے دوسری مصیبت یہ آئی کہ ریت کی بوچھاڑوں اور آندھی کے زناٹوں سے گھبرا کر تینوں گھوڑے منہ زور اور بے لگام ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ چونکہ اکٹھے بتکے تھے، اس لیے اکٹھے ہی دوڑتے جا رہے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ریت میں دب جانے کا خطرہ نہ رہا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ بے لگام گھوڑے کہاں جا رکیں گے اور وہ جگہ اصل راستے سے کتنی دور ہوگی۔ لڑکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گھوڑوں کو قابو کر لیتی۔ اگر گھوڑوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زیادہ دوڑ سکتے، وہ پیاسے تھے اور آدھی رات کے سے مسلسل چل رہے تھے۔ تھکن اور پیاس گھوڑوں کو بے حال کرنے لگی۔ ایک گھوڑا منہ کے بل گرا۔ اس کی سوار لڑکی ایسے گری کہ گھوڑا اٹھا اور جب پھر گرا تو لڑکی اس کے نیچے آ گئی۔ اسے مرنا ہی تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک گھوڑا کا تنگ ڈھیلا ہو گیا۔ زین ایک طرف لڑک گئی۔ اس کے سوار اسی پہلو پر گری، مگر بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ لڑکی زمین میں گھسیٹی جانے لگی۔ تیسری لڑکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا اپنا گھوڑا بے قابو تھا۔ وہ اپنی ساتھی کی چیخیں سنتی رہی، پھر چیخیں خاموش ہو گئیں اور وہ لڑکی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ زمین پر جاتا دیکھتی رہی۔ اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دلیر کیوں نہ تھی، آخر لڑکی تھی۔ زور زور سے رونے لگی۔ ڈھیلی زین والا گھوڑا یکلخت رک گیا۔ تیسری لڑکی اپنا گھوڑا روک نہ سکی۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ آندھی میں اسے کچھ نظر نہ آیا کہ اس گھوڑے کا کیا حشر ہوا۔ لڑکی تو یقیناً مر چکی تھی۔ تیسری لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اس نے رکابوں سے پاؤں ذرا پیچھے کر لیے۔ اس کی دہشت زدگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر جوڑ دیے اور گلا پھاڑ کر خدا کو پکارنے لگی۔ میرے عظیم خدا، آسمانوں کے خدا، میرے گناہ معاف کر دے۔ میں گناہ گار ہوں۔ میرا بال گنہگار ہے۔ میں گناہ کرنے آئی تھی۔ میں نے گناہوں پہ پرورش پائی ہے۔ میرے خدا، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب مجھے بڑوں نے گناہوں کے راستے میں پر ڈالا تھا۔ انہوں نے مجھے گناہوں کے سبق دیتے جوان کیا اور کہا کہ جاؤ، مردوں کو اپنے حسن اور اپنے جسم سے گمراہ کرو، ان کے ہاتھوں انسانوں کو قتل کراؤ، جھوٹ بولو، فریب دو اور بدکار بن جاؤ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ صلیب کا فرض ہے، تم پورا کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار گھٹتی جا رہی تھی۔ زار و قطار روتے ہوئے اس نے خدا سے کہا، تیرا جو مذہب سچا ہے، مجھے اس کا معجزہ دکھا۔ اس کے عقیدے متزلزل ہو گئے تھے۔ گناہوں کے احساس نے اس کے دماغ پر قابو پا لیا تھا۔ موت کے خوف نے اسے فراموش کرا دیا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اسے اپنے ماضی گناہوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مردوں کے استعمال کی چیز ہے اور اسے دھوکے اور فریب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب سزا صرف اس اکیلی کو مل رہی ہے۔ اسے غشی کی لہر آئی اور گزر گئی۔ اس نے دھاڑ ماری اور سر کو جھٹک کر بلند آواز سے کہا، میری مدد کر میرے خدا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ یتیم بچی ہے۔ موت کے سامنے انسان ماضی کی طرف بھاگتا ہے، جو انسانی فطرت کا قدرتی رد عمل ہے۔ اس جوان لڑکی نے بھی ماضی میں پناہ لینے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اسے یہی کچھ یاد آیا کہ صلیبیوں نے اسے پالا، اس راہ پہ ڈالا ہے جہاں وہ ایک بڑا ہی حسین دھوکہ بن گئی ہے۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اب بخشش چاہتی تھی۔ اسے غشی آنے لگی۔ گھوڑے کی رفتار اتنی سست ہو گئی تھی کہ وہ بمشکل چل رہا تھا اور اس کے ساتھ آندھی بھی تھمنے لگی۔ لڑکی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ سلطان ایوبی نے سرحد کے ساتھ ساتھ گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3 دستوں کا ہیڈ کوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحد سے 4-5 میل اندر کی طرف تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے خیمے ایسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بچنے کی اوٹ تھی، مگر اس آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آندھی رکی تو سپاہی خیمے وغیرہ سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ ان 3 دستوں کا کمانڈر ایک ترک احمد کمال تھا۔ وہ ایک خوبرو اور گورے رنگ کا تن و مند آدمی تھا۔ وہ بھی آندھی رکتے ہی باہر آ گیا اور ساز و سامان اور جانوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔
फ़िज़ा गर्द से साफ़ हो गई थी। एक सिपाही ने एक तरफ इशारा करके उसे कहा, कमांडर, वो घोड़ा और सवार हमारा तो नहीं? हमने अभी लड़कियों को फ़ौज में शामिल नहीं किया, अहमद कमाल ने जवाब दिया। वो लड़की मालूम होती है, बाल बिखरे हुए साफ नज़र आ रहे हैं। वो उसी सिपाही को साथ लेकर दौड़ पड़ा। एक घोड़ा सर नीचे किए निहायत ही आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। इसे चारे की बू आई तो हेडक्वार्टर के घोड़ों की तरफ चल पड़ा। घोड़े पर एक लड़की इस तरह सवार थी कि उसके बाजू घोड़े की गर्दन के इधर उधर थे और लड़की आगे को इस तरह झुकी हुई थी कि इसका सर घोड़े की गर्दन से ज़रा पीछे था। लड़की के बाल बिखर कर आगे आ गए थे। अहमद कमाल के पहुंचने तक घोड़ा वहां बंधे हुए घोड़ों के पास जाकर उनका चारा खाने लगा था। अहमद कमाल ने लड़की के पांव रकाबों से निकाले और इसे घोड़े से उतारकर बाजुओं पर उठा लिया। सिपाही से कहा, जिंदा है, फरंगी मालूम होती है, इसके घोड़े को पानी पिलाओ। वो लड़की को अपने खेमे में ले गया। लड़की के बाल रेत से आटे हुए थे। अहमद कमाल ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर मुंह में पानी के कतरे टपकाने लगा। लड़की ने आंखें खोल दी। 2-4 लम्हे अहमद कमाल को हैरत से देखती रही और अचानक उठकर बैठ गई। अहमद कमाल का रंग गोरा देखकर इसने अंग्रेज़ी में पूछा, मैं फ़लस्तीन में हूँ? अहमद कमाल ने सर हिलाकर उसे समझाना चाहा कि मैं ये ज़बान नहीं समझता। लड़की ने अरबी ज़बान में पूछा, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मैं इस्लामी फ़ौज का मामूली सा कमांडर हूँ, अहमद कमाल ने जवाब दिया। और तुम मिस्र में हो? लड़की की आंखें उबल पड़ी। वो इस कदर घबराई जैसे फिर बेहोश हो जाएगी। अहमद कमाल ने कहा, डरो नहीं, संभालो अपने आप को। इसने इसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और कहा, मैं जान गया हूँ कि तुम फ़रंगी हो, मेरी मेहमान हो, डरने की कोई वजह नहीं। इसने एक सिपाही को बुलाया और लड़की के लिए पानी और खाना मंगवाया। लड़की ने लपक कर पानी का प्याला उठा लिया और मुंह से लगाकर बेसब्री से पीने लगी। अहमद कमाल ने प्याला इसके होंठों से हटाकर कहा, आहिस्ता, पहले खाना खा लो, पानी बाद में पीना। लड़की ने गोश्त का एक टुकड़ा उठा लिया, फिर वो खाना खाती रही और पानी पीती रही। इसके चेहरे पर रौनक वापस आ गई। अहमद कमाल ने एक खैमा अलग लगवा रखा था जो इसका गुस्ल खाना था। वहाँ पानी की कमी नहीं थी। खैमा गाह एक नखलिस्तान के करीब थी। अहमद कमाल ने खाने के बाद लड़की को गुस्ल वाले खैमे में दाखिल करके पर्दे बांध दिए। लड़की ने गुस्ल तो कर लिया, लेकिन वो बहुत ही खौफजदा थी क्योंकि वो अपने दुश्मन की पनाह में आ गई थी, जहाँ इसे अच्छे सलूक की तवक्का नहीं थी। इसके जहन में बचपन से ये डाला जाता रहा था कि मुसलमान वहशी होते हैं और औरत के लिए तो वो दरिंदा होते हैं। इसी खौफ के साथ इस पर हबशियों का, मगरमच्छों का, सहराई आंधी का खौफ तारी था। अपने साथ की दोनों लड़कियों की मौत, और वो भी ऐसी भयानक मौत, इसके रोंगटे खड़े कर रही थी। इसने गुस्ल करते हुए बड़ी शिद्दत से महसूस किया था कि वो अपने नापाक वजूद को धोने की कोशिश कर रही है, जिसे दुनिया का पानी पाक नहीं कर सकता। इसने कसमापुरसी की हालत में तंग आकर अपने आप को सूरत हाल के हवाले कर दिया। अहमद कमाल ने यह देख लिया था कि ऐसे हुस्न और ऐसे दिल गुदाज जिस्म वाली लड़की मामूली लड़की नहीं, मिस्र के इस हिस्से में ऐसी फ़रंगी लड़की कैसे आ सकती है। इसने लड़की से पूछा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो काफ़िले से बिछड़ गई है, आंधी में घोड़ा बेलगाम हो गया था। अहमद कमाल ऐसे जवाब से मुतमईन नहीं हो सकता था। इसने 3-4 और सवाल किए तो लड़की के होंठ कांपने लगे। अहमद कमाल ने कहा, अगर तुम ये कहती थी कि तुम अगवा की हुई लड़की हो और आंधी ने तुम्हें छुड़ा दिया है तो शायद मैं मान जाता, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। इतने में सिपाही ने, जो अहमद कमाल के साथ था, खैमे का पर्दा उठाया और एक थैला और एक मशकीज़ा अहमद कमाल को देकर कहा कि ये इस लड़की के घोड़े की जैन के साथ बंधे हुए थे। अहमद कमाल थैला खोलने लगा तो लड़की ने घबराकर थैले पर हाथ रख लिया। इसके चेहरे का रंग बदल गया। अहमद कमाल ने थैला इसे देकर कहा, लो, खुद खोल कर दिखाओ। लड़की ज़बान जैसे गंग हो गई थी। इसने बच्चों के अंदाज से थैला पीठ पीछे कर लिया। अहमद कमाल ने कहा, ये तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें कह दूं कि जाओ, चली जाओ। मुझे कोई हक़ नहीं पहुंचता कि तुम्हें रोकूं, लेकिन एक ऐसी लड़की जो आबादियों से दूर अकेली घोड़े पर बेहोशी की हालत में भटकती हुई पाई गई है, इसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। ये मेरा इंसानी फ़र्ज़ है। मुझे अपना ठिकाना बता दो, मैं तुम्हें अपने सिपाहियों के साथ हिफाजत से पहुंचा दूंगा। अगर नहीं बताओगी तो तुम्हें मुश्तबा लड़की समझकर काहिरा अपनी हुकूमत के पास भेज दूंगा। तुम मिस्री नहीं हो, तुम सूडानी नहीं हो। लड़की के आंसू बहने लगे। वो जिस मुसीबत से गुजर कर आई थी, इसकी वहशत और हौलनाकी इस पर पहले ही गालिब थी। इसने थैला अहमद कमाल के आगे फेंक दिया। अहमद ने थैला खोला तो इसमें से कुछ खजूरें, 2-4 छोटी मोटी आम सी चीज़ें निकली और एक थैली निकली।
ये खोली तो इसमें से सोने के बहुत से सिक्के और इनमें सोने की बारीक सी जंजीर के साथ छोटी सी सियाह लकड़ी की सलीब निकली। अहमद कमाल इससे यही समझ सका कि लड़की ईसाई है। इसे गालिबन मालूम नहीं था कि जो ईसाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए सलीबी लश्कर में शामिल होता है वो एक सलीब पर हलफ उठाता है और छोटी सी एक सलीब हर वक्त अपने पास रखता है। अहमद कमाल ने इसे कहा कि इस थैले में मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अगर मैं ये सारा सोना तुम्हें दे दूं तो मेरी मदद करोगे? लड़की ने पूछा। कैसी मदद? मुझे फ़लस्तीन पहुंचा दो। लड़की ने जवाब दिया। और मुझसे कोई सवाल न पूछो। मैं फ़लस्तीन तक भी पहुंचा दूंगा, लेकिन सवाल ज़रूर पूछूंगा। अगर मुझसे कुछ भी ना पूछो तो इसका अलग इनाम दूंगी। वो क्या होगा? घोड़ा तुम्हें दे दूंगी। लड़की ने जवाब दिया। और 3 दिनों के लिए मुझे अपनी लौंडी समझ लो। अहमद कमाल ने इससे पहले हाथ में कभी इतना सोना नहीं उठाया था। इसने ऐसा हैरानकुन हुस्न और जिस्म भी नहीं देखा था। इसने अपने सामने पड़े हुए सोने की चमकते हुए टुकड़ों को देखा, फिर लड़की के रेशम जैसे बालों को देखा जो सोने के तारों की तरह चमक रहे थे। फिर इसकी आंखों को देखा जिनमें वो तिलिस्माती चमक थी जो बादशाहों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया करती है। वो तनोमंद मर्द था, कमानदार था, इन दस्तों का हाकिम था जो सरहद पर पहरा दे रहे थे। इसे रोकने, पूछने और पकड़ने वाला कोई न था, मगर इसने सिक्के थैली में डाले, सलीब भी थैली में रखी और थैली लड़की की गोद में रख दी। क्यों? लड़की ने पूछा। ये कीमत थोड़ी है? बहुत थोड़ी, अहमद कमाल ने कहा। ईमान की कीमत खुदा के सिवा कोई नहीं दे सकता। लड़की ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अहमद कमाल ने उसे बोलने न दिया और कहा, मैं अपना फ़र्ज़ और अपना ईमान फ़रोख्त नहीं कर सकता। सारा मिस्र मेरे एतमाद पर आराम की नींद सोता है। 3 महीने गुजरे, सूडानियों ने कायरा पर हमला करने की कोशिश की थी। अगर मैं यहाँ ना होता और अगर मैं उनके हाथ अपना ईमान फ़रोख्त कर देता तो ये लश्कर कायरा में दाखिल होकर तबाही बर्बाद कर देता। तुम मुझे उस लश्कर से ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आती हो। क्या तुम जासूस नहीं हो? नहीं। तुम यही बता दो कि तुम्हें आंधी ने किसी जालिम के पंजे से बचाया है या तुम आंधी से बचकर निकली हो? लड़की ने बेमायने सा जवाब दिया तो अहमद कमाल ने कहा, मुझे तुम्हारे मुताल्लिक़ ये जानने की ज़रूरत नहीं कि कौन हो और कहाँ से आई हो। मैं कल तुम्हें काहिरा के लिए रवाना कर दूँगा। वहाँ हमारा जासूसी और सुराग रसानी का एक महकमा है, वो जाने और तुम जानो। मेरा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। अगर इजाज़त दो तो मैं इस वक्त ज़रा आराम कर लूँ। लड़की ने कहा, कल जब काहिरा के लिए मुझे रवाना करोगे तो शायद तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूँ। लड़की रात भर की जागी हुई और दिन के ऐसे खौफनाक सफ़र की थकी हुई थी, लेटी और सो गई। अहमद कमाल ने देखा कि वो नींद में बड़बड़ाती थी, बेचैनी में सर इधर उधर मारती थी और ऐसे पता चलता था जैसे ख्वाब में रो रही हो। अहमद कमाल ने अपने साथियों को बता दिया कि एक मशकूक फ़रंगी लड़की पकड़ी गई है जिसे कल काहिरा भेजा जाएगा और इसके साथी अहमद कमाल के किरदार से वाकिफ़ थे। कोई भी ऐसा शक नहीं कर सकता था कि इसने लड़की को बदनीयती से अपने ख़ैमे में रखा है। इसने लड़की का घोड़ा देखा तो वह हैरान हुआ क्योंकि घोड़ा आला नस्ल का था और जब इसने ज़ैन देखी तो इसके शकूक रफ़ा हो गए। ज़ैन के नीचे मिस्र की फ़ौज का निशान था। ये घोड़ा अहमद कमाल की अपनी फ़ौज का था। हबशियों ने आंधी की वजह से ताक़ुब तर्क कर दिया था। वो वापस ज़िंदा पहुंच गए थे। पेशवा ने फ़ैसला दे दिया कि लड़कियां आंधी में मारी गई होंगी, लिहाजा ताक़ुब में किसी को भेजना बेकार है। वक्त भी बहुत गुजर गया था। तो साथियों, आज का ये पार्ट ख़त्म होता है। कल मिलते हैं पार्ट 19 के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो कल मिलते हैं पार्ट नंबर 19 के साथ। अल्लाह हाफिज़।